हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं कि क्राउन कैसे डिप्लॉय होता है। क्राउन जैसे स्ट्रेटजी से शेयर की जाती है, जैसे सब आप स्टूडियो में आजकल पोस्ट कर रहे हैं कि ये क्राउन बन जा रहा है, तो देख जानते हैं कि ये क्राउन कैसे बनता है। तो पहले मैं आपको इसके लिए देखिए, आपको लिए रिक्वायरमेंट क्या है। आपका जो स्ट्रेटजी है उसको फ्री होना चाहिए। अगर आप नॉन डायरेक्शनल पे करते हो, इफ़ यू आर डिप्लॉइंग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू free your trade. So let me show you an example. Here you can see we have, suppose this is just for an example, we have shorted here 17,550 call and 17,550 put, right? And 17,550 we have created straddle, and for hedges we have bought 300 points, 250 points for wings. Why we have bought 250 point wings? Because the premium which we have collected, that was around 250 points, so we have bought 17,800 call and 17,300 put. So see, इसमें क्या होगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू डिप्लॉय दिस को, अभी उस टाइम यू विल हैव अ मिनिमम रिस्क ऑन बोथ साइड, राइट? सो दैट्स डिपेंड कि हाउ फार यू आर बाइंग द विंग्स. So we are not here to discuss about how to deploy iron fly. We are only here to discuss how to create these crowns. So now you see, अभी क्राउन कैसे बनाना है, लेट्स अंडरस्टैंड. So there are two types. First of all, we can deploy that crown from डायरेक्शनल स्ट्रेटजी ऑल्सो, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा. बट अभी जैसे यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल में, इफ़ यू वांट टू डिप्लॉय द क्राउन, तो उसमें क्या होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फ्री द योर फ्लाई. तो फ्लाई फ्री करने के लिए either you need to be good on support or resistance. You need to have the knowledge of the market कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है. और सेकेंडरी आपका जो और यू कैन से इट्स लक कि आपका जो यहाँ पे मानिए 770-50 में यू हैव शॉर्टेज स्ट्रेडल, तो वी वॉन्ट टच आवर फ्लाई अंटिल अनलेस ब्रेक इवन नॉट ब्रीच. से कि लास्ट डे में, से एग्जांपल कि लास्ट डे मार्केट क्लोज हुआ, वी हैव क्रिएटेड 17,550 स्ट्रेडल एंड market closed around 17,650, right? But still our break even was not beat, so we haven't did any adjustment because our maximum loss was in our range, right? So next day say market opened again flat, or say market open 100 points gap down. In that case, your this straddle will be an entire profit, because last trading day you have created 17,550 straddle and market went to 17,650, but next day again it opened 100 or 70-80 points gap down, so again this option become ATM, right? So in that case, your straddle will be in profit. So first of all, for then you need to just bring your wings that you have bought 17,800 call and 17,300 put to inside. So in this case, see, this is just for example. See, suppose we have bought 17,800 call and market and 17,300 puts. So market after one day, market again came in this range of our straddle, then this straddle will be in profit. So what we will do, we will just book this 17,800 call and we will book 17,300 put, and we will come little inside. See, you can see 17,800 call, we have bought 17,750 call, and instead of 17,300 put, we have bought 17,350 put. So what we are doing, we are just coming little bit inside. You see, this is 7,550 call, earlier we have bought 17,300 call and 17,800 put. Now our, again the market is trading near around our straddle. So in this case, we will just book our wings and bring wings little inside. So we have bought 50 points inside, from 7,300 to 7,350, and from 7,800 to 7,750, right? So suppose now you have did this adjustment and your fly is now free. तो अभी आपको क्या करना है, now you need to just, if you want to create these crowns, so उसमें कैसे होगा, I'm just telling you. Suppose कि आपको जो है यहाँ पे क्राउन और क्रिएट करना है. सो इन दैट केस मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 1% जो प्रोबेबिलिटी होती है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी साइन, राइट? सो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है आपके, तो 1% स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट 63% कि प्राइस यहाँ पे जा सकता है, राइट? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 68 to 63%, राइट? एंड 2% इज 2% जो आपका एसटीडी है, दैट्स इंडिकेट्स कि वहाँ पे 93% की प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ तक प्राइस जा सकता है, राइट? दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, राइट? तो मार्केट जब नेक्स्ट डे गैप अप होकर आगे सस्टेन कर दे, सो ये आपका एक ये कुछ फॉर्मूलाज में इसका होता है, आप इसको देख लेना. ये मतलब कि इंडिकेट्स अबाउट कि वहाँ पे कितना इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है. उस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन और से कुछ कैलकुलेशन होता है इसका, तो उसके हिसाब से आपको मिलता है कि रेंज कितनी है, तो वो बस प्रिडिक्शन होता है. तो अभी वी नीड टू मेक द क्राउन. सो फॉर दिस, जैसे यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 7,260, राइट?
अभी हम लोग को यहाँ पे देख लेते हैं कॉल साइड में कितना आ रहा है, आई मीन अपर साइड में कितना आ रहा है, 7,900 राइट। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग यहाँ पे जाएंगे 7,900 का हम लोग जाके दो कॉल को सेल कर देंगे राइट। जैसे हमने 700 के दो कॉल को सेल किया तो सी द प्रे ऑफ इज चेंज नाउ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे अगेन, जैसे मैंने यहाँ पे बाय किया 7,900, तो हम लोग 100 पॉइंट जितना आपको बड़ा क्राउन क्रिएट करना है, लाइक यू नीड टू बाय द लिटिल फायर, है ना। तो अभी वी हैव शॉर्टेड 7,900 अराउंड नियर अराउंड 1% ऑफ लाइक 1 sigma, then again we will just buy the hedges for it, right? So we have shorted 1,700 calls, and now we will buy 1,800 call in single quantity and 18,000 call in single quantity, right? So you can see now you have created one crown, right? If you want to create the crown on the left side also, this of course your margin will deploy will be little higher because you are creating a new बटरफ्लाई राइट। सो इन दिस केस यहाँ पे हम लोगों ने बटरफ्लाई किया, वो ऑटोमेटिकली आपका एक विंग बन गया राइट। नाउ से वी नीड टू डिप्लॉय द लाइक ऑन द लोअर साइड ऑल्सो, लाइक you have deployed, market was heading upwards, you have deployed this strategy also, because if the market will if on expiry day market, see suppose market ends here, and that time you will have maximum profit of 33 that is 3,300 rupees, right? So why do we create these crowns? To increase our like maximum profit zones, right? Because if the market close somewhere suppose say market expires somewhere near here on expiry date is 17,250, so in this case we will only have 480 rupees, right? So we create this crown just to enhance our profit for the from like maximum profit range, right? तो यहाँ पे peak का range जो आपका वो maximum नहीं रहेगा। I'm talking अगर if the break even is breached, though our strategy is free, but still the maximum like this peak is breached, then still we have some chances to get still some profit of it from it। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर वहाँ के यहाँ भी क्लोज होता है वी विल हैव 26,600। अभी इससे पहले अगर ये हम लोगों ने नहीं डिप्लॉय किया था तो यहाँ पे दिस लाइन वाज ऑलमोस्ट फ्लैट। सो अभी हमने यहाँ पे अपना एक विनिंग प्रोबेबिलिटी बना दिया है। अब सपोज कि मार्केट इज रिवर्सिंग फ्रॉम एनी रेजिस्टेंस, सपोज मार्केट रिवर्स फ्रॉम 17,500 एंड नेक्स्ट डे इट्स ओपन गैप डाउन, सो इन दिस केस वी कैन ऑल्सो डिप्लॉय वन दिस क्राउन over here। So this let me check जो first sigma, the first sigma is coming around 7,250, right? So in this case we will just go and short two options of 7,250, and we will buy 100 points away in inside and 100 points outside. We have bought 7,250, right? 7,250, right? And we will buy 7,150 in this case। So now you will see now you have 3 count, right? सो ऐसे ही कुछ आपको वहाँ पे शो होता है राइट। अभी क्या होता है ना, अभी कभी ऐसा होगा जब आप फ्लाइट डिप्लॉय करोगे तो इन दिस यहाँ पे आपको ना, जैसे आप इफ़ यू आर डूइंग मैनी एडजस्टमेंट, जैसे वहाँ दे यूज टू डू मैनी एडजस्टमेंट जस्ट टू कंट्रोल दिस ब्लू लाइन। दिस ब्लू लाइन इज योर करंट डे M2M, राइट। दिस ब्लू line indicate if the price reaches this level, then what will be your current day MTM। So in this case suppose if market like head to from 17,570 to 17,750, in this case this blue line indicating your M2M will be shown 290 to 2,900 something rupees, right? So now see we have created one more this crown on the lower side। this is just for like increasing your profit zones, right? अभी market earlier we were having यहाँ पे see what we are doing, we are यहाँ से earlier there was a 480 rupees maximum profit, now you see there is only 92 rupees profit। तो in this strategy आपको क्या कोई भी strategy will deploy, आपको प्रॉफिट को यहाँ से वहाँ ही होगा, और आपका कुछ कहीं भी आपका जो लॉस फ्री है वो आपका उसका क्राइटेरिया यही है, इफ़ यू आर रिस्क फ्री। तो अगर आप उसके बाद यू आर डूइंग सम एडजस्टमेंट तो आपका जो जोन मिनिमम प्रॉफिट वाला वो डिक्रीज होगा, प्रॉफिट ही यहाँ वहाँ से शिफ्ट हो सकता है। उसके अलावा आप सोचो कोई अलग से क्राइटेरिया होता होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका जो प्रॉफिट है अगर आपको मैक्सिमम लॉस, सपोज योर मैक्सिमम लॉस इज 3,000 रुपीज़ एंड आफ्टर क्रिएटिंग आपने एक और फ्लाई बना दिया, तो वहाँ पे आपका जो है मैक्सिमम लॉस हो सकता है वहाँ पे 4,000 होने लगे, क्योंकि आपने वहाँ पे फर्दर क्रेडिट ले लिया, राइट है। तो वैसे आपको यहाँ पे देखना है, ये हो गया दिस इज फॉर नॉन डायरेक्शनल।
और आई इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट कि हाउ यू कैन जस्ट गो डायरेक्शनल, बिकॉज मैं डायरेक्शनल ही प्ले करता हूँ। आई डोंट लाइक प्ले दिस आयरन फ्लाई एंड ऑल, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। सो मैं डायरेक्शनल प्ले करता हूँ। डायरेक्शनल में यू कैन लाइक आप काफ़ी अच्छे क्राउन, काफ़ी ज़्यादा क्राउन बना सकते हो ना, तो मार्केट फिर कहीं पे भी जाए लपसी। मैं आपको जो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ जैसे फ्राइडे को है, मैं हर दिन मतलब 5 दिन मैं अपना जो है डायरेक्शनल प्ले करता हूँ। तो ऐसा होता है, लेकिन एक्यूरेसी टच वुड ठीक ठाक है, तो वहाँ पे 3-4 बार प्रॉफिट मेरे को रिस्क फ्री हो जाता है मेरा ट्रेड। तो उसमें जैसे मेरे मान ली एक जोन यहाँ बन गया, ठीक है, एक जैसे ट्रेड था मेरा, सपोज ये एक ट्रेड मेरा ऐसा बना हुआ है, सिंगल ट्रेड। एक मैं सपोज डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ हम सबको डिलीट कर देते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके फाइन, ओके शायद मैंने गलत डिलीट करी, तो वो मैंने हेजेस दूसरे वाले बाय हेजेस को, विंग्स को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे पूरा पे ऑफ गलत हो गया। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा पूरा फ्लैट लाइन है, और यहाँ पे एक तरफ मेरे को आई एम गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। सो मैं मान लीजिए मैंने फ्राइडे को डिप्लॉय कर दिया, अगेन आई विल स्टार्ट डायरेक्शनल सेलिंग ऑन मंडे। सो सपोज कि यहाँ पे फ्राइडे का तो यहाँ पे ग्राउंड बना था, को मंडे को से मंडे को यहाँ बन जाए, राइट, ट्यूसडे को यहाँ बन जाए। तो उसमें क्या होगा ना, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट विद इन लाइक 4-5 जो मेरे क्राउन बन गए हर डे के लिए, अगर मेरी एक्यूरेसी 70% भी आ रही है उसमें, तो मैं एक्यूरेसी क्या है, मैं उसमें काफ़ी कम पॉइंट्स से लेके उसको डिप्लाई करता हूँ। इफ़ माई ट्रेड इज इन 30 पॉइंट्स प्रॉफिट, देन आई गो फॉर लाइक हेजेस एंड आई मेक माई ट्रेड फ्री। तो आई विल एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट, उसको कैसे करना होता है। तो यहाँ पे वट आई डू, मेरे से 5 क्राउन बन गया, राइट। सो मेरे 5 क्राउन में किसी भी एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट उस क्राउन में, मतलब पूरे वीक में अगर वी हैव 5 क्राउन्स, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट किसी एक क्राउन के ऊपर जाके एक्सपायर हो, वहाँ पे यू विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। सो दिस वॉज इट, कि अगर वीडियो आपको ठीक लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो।